Hello all. Welcome to another episode of Vachale Dimahi. Today it's going to be a pure discussion on a hot topic between three experts. So you all are familiar with my partners, none other than Deepthi Grover and Garima. These two are NLP experts, counselors, and educators by profession. So here they are with me to have a discussion, candid discussion. See if we can come up with few solutions in the process of discussion. So I welcome Deepthi and Garima to this episode of Vasali Dimahi, where we are going to discuss about a hot topic, mobile addiction. All the time, someone or the other keeps on complaining. So when we talk about kids to parents, parents say, "My kid is so addicted to screen. My kid is always on the mobile." And when I noticed from my point of view as an adult, it was different perspective. So I will share my experience with you both, and you come up with your views on that. So recently, my second son had annual day. So we have been there. Very good environment. As Bangalore is little cold, we all had to be warmed up with warm clothes. So armors were there. But it was a very astonishing scene to me. Before the program as well, I could hear so many Instagram reels going on and some memes cracking the music back end. That was there. Okay, fine. That was before the program could start. So that was okay. But after the program also started, when the chief guest is talking, people are not giving their attention towards the program for which they have wholeheartedly joined there. They're present only for that annual day program. Everyone knows it. And we are all not small kids, right? All parents, adults. So this is like it was very shocking to me. Don't we think that where are we? What are we here for? So how do we see this? And when I had a look around, everyone was busy in their phones. So Garimaji, I would like to ask you, do you think this aspect is a mobile addiction? What is your perspective? So I shared my experience. This was really shocking to me because all as parents of one or two kids or three kids, we know that we are there for that annual day and we are looking forward for the program to start. And when the program started as well, we still are not letting go the extended arms. What do you see from your point of view? जी तारा जी। जैसे आपने सिनेरियो बताया, एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वहां पे जो ऑडियंस है और जो ऑडियंस है वो पेरेंट्स हैं, और वो फुल्ली अटेंटिव नहीं है जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। तो ये जो स्टेट है पेरेंट्स की, ये अनस्टेबल स्टेट बताती है। Okay. और उनके हाथ में गैजेट है, मोबाइल है ना। और आज जो मोबाइल है वो, पहले हमारी आइडेंटिटी हमारी होती थी, लेकिन अभी हमारी आइडेंटिटी के साथ मोबाइल भी जुड़ गया है। मोबाइल अब एक ऐसी जगह आ गया है कि वो हमको रिप्रेजेंट करने लगा है। और इससे हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया है। पहले हम एक जगह से, सपोज ऑफिस है, हम ऑफिस से निकल गए तो हम ऑफिस से फुल्ली निकल जाते थे, हम डिटेच हो गए वहां। ठीक है, अब हम जहां भी नेक्स्ट प्रेजेंट है वहां पे फुल्ली प्रेजेंट है। कोई हमको बताने वाला नहीं है, हम वहां पे फुल्ली प्रेजेंट है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है वहां पे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी जोन है, हमारा क्या कहते हैं, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, हमारा कलीग्स है, हमारे ऑफिस है, हमारा बॉस है, अभी मोबाइल के थ्रू फुल टाइम हमसे जुड़े हुए हैं। पहले एक टाइमिंग फिक्स होता था, हम घर पर है तो घर पे सब लोगों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है तो फ्रेंड्स के फुल्ली साथ है, कलीग्स के साथ है तो कलीग्स के साथ है। लेकिन आज हम एक गजेट की वजह से, मोबाइल की वजह से फुल टाइम जुड़े हुए हैं। तो टाइम का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहा। अब क्या होता है कि अब ये डेली की हैबिट बन गई है कि हमारे कुछ काम छूट गए, मुझे आपको कुछ सर्व करना है, बताना है, तो मैंने फट से मैसेज कर दिया। अब चूंकि एक मैसेज आया है तो आप उसे देखेंगी। तो इस तरह से बार बार मैसेज आ रहे हैं और हम डेली रूटीन में ये काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं तो ये बहुत जरूरी हो जा रहा है। आजकल मतलब ऑफिस टाइम पे भी इवन है कि हमारे पास क्या मेल आया, क्या मैसेज आए, बॉस ने किया है, कलीग ने किया है, कुछ काम का है, तो वो हमें हमारे लिए देखना जरूरी हो गया। इस प्रोसेस की वजह से, इस कंटिन्यूटी प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, एक हैबिट जनरेट हो गई हमारे अंदर कि अब हम बार बार वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि कुछ भी पॉपअप हुआ, कुछ भी नोटिफिकेशन आया, कोई आवाज आई, तो हम उसको तुरंत देखते हैं, उस पर ध्यान जाता है। उसमें कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें सडनली तुरंत देखना है, क्योंकि कंपटीशन भी है, हमें अपने आप को अपग्रेड भी दिखाना है, हमको सब दूर अपने आप को शो ऑफ भी करना है। और एक आसान तरीका है जहां पे आप एक जगह सब दूर ना होके भी सब दूर प्रेजेंट बने रहते हो, इस वे से। तो वहां जो पेरेंट्स है वो इसी मोड में थे, और वो
वहां पे प्रेजेंट जरूर थे फिजिकली, लेकिन वो बाकी चीजों से भी सेम टाइम पे जुड़े हुए हैं। तो यही रीजन है और ये एक हैबिट बन गई है। और दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑफिस से गए या घर से गए तो वहां से डिटैच हो गए हैं, अब जहां पे हम प्रेजेंट है वहां पे अटैच है। पहले हमारे पास कोई जरिया नहीं था, कोई मनोरंजन का, कोई बात को जानने का। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में जाके हमें जो चीजें दिख रही हैं, हमने जो सीखने को मिल रही हैं, समझ में आ रही हैं, परफॉर्मेंस हो रहा है, हम उसको जिज्ञासावश देख रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि यही परफॉर्मेंस हमारे को वीडियो रूप में मिल जाने वाला है, हम इसको देख पाएंगे। इतने क्राउड में इतनी दूर से हम इतना पास से देख लेते हैं, अकेले बैठ के देखते हैं, पूरे माइंडफुलनेस के साथ देखते हैं, तो हमको वो चाहिए। अब हम ये क्राउड के साथ देखना, इतना अटेंटिव होकर देखना, वो हमें भाता नहीं है। तो ये एक जो हैबिट हो गई है, क्योंकि पता है वीडियो मेरे बच्चे का आएगा बनकर, मैं उसको अच्छे से देख लूंगा। और जब हम आजकल रील्स हो सोशल मीडिया पे इतने सारे प्रोग्राम्स और फंक्शंस के वीडियो आते हैं और हमको आमने सामने देखते हैं, तो इसलिए हमको वही जो मजा है, जो हमारी जो इंद्रियों का मजा है, अब हम उस स्तर का हो गया है। तो अब वो कम स्तर वाला है ना, देखने को अच्छा नहीं लगता है, उसको मजा नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से ये रीजन है कि पेरेंट्स जो है डिटेच रहे और अपना फुल परफॉर्मेंस। अच्छा, अब उनको ये भान भी नहीं है कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम यहाँ पे आए हैं, कैसा फील होगा, बच्चों को कैसा फील होगा, या हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो भी भूल गए हैं। मतलब वो उसमें डूबे हुए हैं। तो आपने सही कहा कि ये एक मोबाइल एडिक्शन ही है, इसका ही पार्ट है। दीप्ति जी, आपको भी एक सिचुएशन मैंने जो नोटिस किया हो वो बोल देती हो, आप उसके ओपिनियन बता दीजिए। जी बताइए। रिसेंटली आई हैड बीन टू हैदराबाद फॉर माय कजिन्स वेडिंग। तो वहां पे भी यही माहौल, बट क्या है, माहौल अलग है। मतलब जो पर्सनैलिटी दिख रहा है ना, वो छोटा हो गया है, वो बड़ा नहीं है। अभी तो गरिमा जी के साथ मैंने बड़े वाले का, अडल्ट का बता दिया था। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वो छोटा छोटा जो बच्चे घूमना चाहिए जब शादियों की माहौल में या पार्टी की माहौल में, ऐसा मस्ती का सुनाई देते थे वो पहला, अभी मुझे लगता है वो पूरा लाइक 98% कम हो गया है। क्योंकि किसी के साथ वो मिलना जुलना नहीं पसंद करते, स्ट्रेंजर्स के साथ। जो भी स्कूल में है बच्चे, उन लोगों के साथ ही अच्छे खेलते हैं, बातें करते हैं। अभी नए वाले मिलते हैं, कभी नई जगह गए, शादी मतलब नया जगह ही है, पता नहीं हम कितने लोगों को बाद में हम मिल सकते हैं। बट जो भी बच्चे वहां पे मिलते हैं, वो इतने अच्छे से खेलते थे पहले, अभी वो मुझे देखने के लिए नहीं मिला। और डाइनिंग हॉल में जाती हूँ, वहां वही माहौल जो हर घर की कहानी है। It's nothing else, like you have to feed the kid, give mobile or screen to kid, they'll have their food. So the personality has been shortened, but what do you think this is? So ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि हम जितना बात करें और जितना भी सोचे, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये फायदा भी है और ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम सोल्यूशन पे बात नहीं कर पा रहे हैं या सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बेसिकली जैसे आप सिचुएशन बता रहे हो, ऐसा ही होता है। मैं गरिमा जी को भी सुन रही थी, आपको भी सुना। तो कुछ कुछ वर्ड से ही अगर हम ध्यान दें कि एक्चुअली जब ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल चार्म को मिस कर रहे हैं। रियल चार्म जो है लाइफ का, जो ब्यूटी है, जो भी इवेंट्स हैं, हम उसका एक्चुअल इवेंट की जो मौज मस्ती है, जो रिलेशनशिप हम वहाँ बिल्ड कर सकते हैं, वो हम मिस कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में एक वर्ड चल पड़ा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि जितने भी एडिक्टेड, मोबाइल एडिक्टेड लोग हैं, उनके लिए ये फिट होता है। दे फियर दैट दे आर मिसिंग समथिंग, और वो बार बार कोई नोटिफिकेशन आता है, चेक करते हैं, कोई भी पॉपअप आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई रील्स आ गई, कोई अपडेट आया, उनको देखना ही देखना है, बिकॉज दे फियर कि हम कुछ मिस कर जाएंगे। अरे उसके कुछ मैसेज आया, उनके यहाँ क्या हुआ। लेकिन इतने सब फियर्स में एक्चुअली वो जो रियल लाइफ है, जो ट्रू हमारा कहते हैं कि एंजॉयमेंट है, वो मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो मोबाइल छूट जाएगा, या मोबाइल का कुछ मैसेज, कोई रील, कोई आपका जो पॉपअप आया है वो छूट जाएगा तो वो मिस हो जाएंगे, वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे। बट बेसिकली दे आर मिसिंग ईच एंड एवरी रिलेशनशिप, कनेक्शन, एम्पथी, ये सब चीज वो रियल लाइफ में मिस कर रही है, जो कि हम एक लाइफ को, लाइफ स्किल जीने के लिए, लाइफ का रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए जरूरी होता है। पर ये शायद हम सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बच्चों के लिए। आ, गरिमा जी और आपने दोनों ने एक वर्ड यूज किया, क्राउड। वी आर मिसिंग, अवॉइडिंग द क्राउड आउटसाइड, बट एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग द क्राउड इनसाइड। जितना हम मोबाइल के साथ अटैच हो रहे हैं, हम अपने माइंड्स में क्राउड क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे आसपास जो है हम उसे क्राउड कह रहे हैं, और उसे हम मिस करें, जबकि वो क्राउड नहीं, वो रियल कनेक्शन है। आप किसी भी इवेंट में हैं, अब गरिमा जी ने कहा हम मोबाइल से, या आप भी कह रहे हो कि बच्चे भी, सब कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कि हम अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, रिलेशन से मोबाइल के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो हम किसी रिलेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, वहां पे हम सिर्फ मोबाइल से जुड़े हैं, वास्तव में देखा जाए तो।
हमारे रिलेशन सारे छूट चुके हैं। तभी आपने कहा कि जब बच्चे किसी फैमिली फंक्शन में भी गए हैं, फैमिली गैदरिंग में भी गए हैं, तो वो क्यों जेलअप नहीं हो पा रहे, वो किसी और के साथ क्यों पैचअप नहीं कर पा रहे हैं, वो मोबाइल्स में ही वापस जुड़ जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो हु दे आर। उन्होंने कभी देखा ही नहीं अपने रिलेटिव्स को, उनके बारे में कभी जाना ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, सिर्फ मोबाइल पे उनके साथ कनेक्शन में है। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे के घर आते थे तो वी नो ईच अदर फिजिकली, फेस से जानते थे, नाम से जानते थे, पहचानते थे, ये हमारा ये रिलेटिव है। तो जब आज की डेट में बच्चा जानता ही नहीं हूँ दे आर, फर्स्ट रिलेशंस भी जब दूर हो जाते हैं तो कई बार जो मासी बुआ बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, बच्चे जो होते हैं उनसे भी फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वो ऐसे फैमिली फंक्शन में मिलते हैं तो वो रियल रिलेटिव्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रेंजर। और कोई भी बच्चा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंजर से तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, इतनी जल्दी जेलअप नहीं हो सकता ना। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए कहाँ जाता है, उसके पास उसका एक नोन टू गैजेट है जो उसके साथ जब से वो बाय बर्थ उसको मिल गया है, तो वो उसके साथ ही जो उसको दिख रहा है, उसके कार्टून्स हैं, गेम्स हैं, रील्स हैं, वट एवर इट इज, तो वो उसको ज्यादा फेमिलियर लगता है क्योंकि वो डेली उनके साथ कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में क्या है ये सब, तो ये सब यहाँ से डिटैचमेंट शुरू हो रहा है, एक्चुअल रिलेशन से, रियल रिलेशन से। और हम अटैच हो रहे हैं सिर्फ मोबाइल से, नॉट कनेक्टिंग विद द पीपल बट डिसकनेक्टिंग विद द रियल रिलेशनशिप। आई एम नॉट अगेंस्ट कि हम जा रहे हैं ऐसे इवेंट पे, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है कि आप फोटोज क्लिक कर रहे हो, वो आपकी मेमोरीज बनती हैं, नो डाउट। अगर हम अपने अभी चाइल्डहुड की कोई भी फोटोज देखते हैं तो वी गेट इन टू रियल सिनेरियो, कि हमें याद आता है कि हाँ ये इवेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन था, हमने कैसे ड्रेसअप किया था, या हम स्पेशल फंक्शंस में गए हैं तो बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, वो स्पेशल मोमेंट होते हैं, वी वांट टू कैप्चर दैट मोमेंट, कि हम कभी भी फ्यूचर में जाके वापस अगर हम उसको देखते हैं तो हम रिवाइव कर सकते हैं। इट्स नॉट बैड, बट ओवर इंडल्जेंस, कि हम उसी में रह जाए और बाकी सब कुछ छोड़ दें, तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग आउट। तो इट्स बेटर कि वी लीव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, एंजॉय। एंड मैंने एक इसके लिए कोड भी रखा था, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो जॉय ऑफ, फोमो को चेंज करते हैं जोमो में। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम मोबाइल, हमें लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल को साइड रखकर उस इवेंट को, उस पर्पस को जहां हम हैं माइंडफुली उसको एंजॉय करें, दैट इज डोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। Wow, wonderfully explained. गरिमा जी, जो मोबाइल एडिक्शन का जो पर्सनालिटी इम्पैक्ट रहता है, वो एक्चुअली एज एन एक्सपर्ट हाउ डू यू सी इट? आपके पास जो भी केसेस आता है ऐसे वाले में, ये मोबाइल एडिक्शन का आया है, कभी आपने इसका अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपने सुना है क्या? मैंने सुना है अदर साइड ऑफ स्टोरी, मोबाइल एडिक्शन। बच्चों में जो हम देखते हैं कि किसी भी वजह से, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चों के पास ऑप्शंस थे, और पेरेंट्स को फुल टाइम जो था उनको नहीं देखना पड़ता था, और अभी भी पेरेंट्स के पास फुल टाइम नहीं है उनको देखने के लिए। पहले ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स बच्चों को एंगेज कर लेते थे, बच्चों को एक अच्छा टाइम मिलता था स्पेंड करने का। और आज ऑप्शन नहीं है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं। अब उस मोबाइल में जब वो पूरे समय इंगेज रहता है तो उसी पे उसको किसी का हस्तक्षेप जो है वो पसंद नहीं आता, कि आप उसे कुछ बोलें, कुछ ऐसा बोले या ऐसा करने को बोले जो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस मोबाइल में उसके पसंद का काम कर रहा है। उसने अपनी वहां पे स्पेस बना ली है, एक जगह बना ली है। अब जब आप उसको वहां से आप हटाना चाहते हैं, तो वो उससे इतना अटैच हो चुका है, इतना जुड़ चुका है कि वो वहां से नहीं हटना चाहते। जब आप फोर्सफुली ऐसा करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन उसकी दिखाई देता है, और एग्रेसिवनेस दिखाई देती है, उसका जो मिसबिहेव दिखाई देता है, वो सब चीजें दिखती हैं। और उसका जो काम करने का तरीका है वो प्रॉपर नहीं होता, काम में उसका मन नहीं लगता, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी डाउन हो गई है, मेंटल जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल गया है, वो मोबाइल के अकॉर्डिंग ही हो गया है, क्योंकि अर्ली एज में उसने ये सब चीजें की हैं। तो अब पेरेंट्स परेशान हैं उसके इस बिहेवियर से, जो उसकी पर्सनैलिटी का एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, एक प्रॉपर डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहा है। वो प्रभावित हो गया है पूरी तरह से, और अब पेरेंट्स जो है परेशान है कि अब हम क्या करें, कैसे इसको ठीक करें। तो ये पर्सनैलिटी में चेंज मिलते हैं, उसका जो फोकस है वो कम हो गया है, मेमोरी कम हो गई है, उसका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो चीजों को टालना चाहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बढ़ गया है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नींद आ रही है फिर भी हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक हैबिट में आ गया है। अब वो हर बात से बचकर
केवल मोबाइल के ऊपर आना चाहता है कि मुझे कैसे कब मौका मिल जाए, तो झूठ भी बोल सकता है। तो इस तरह से भ्रमित कर सकता है, पेरेंट्स को भ्रमित कर देता है झूठ बोलकर, या हाँ मैंने ऐसे किया नहीं किया। तो इस तरह से काफी बड़ी समस्या है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ जो इस मोबाइल का एडिक्शन जिसको हो गया है। जो जो शब्द अभी गरिमा जी ने यूज किया, दीप्ति जी, मुझे लगता है मैंने ये सारे शब्द बड़ों से सुना है। तो जब आपकी प्रोफेशनल सर्कल में या फैमिली सर्कल में आपने इसको ऑब्जर्व किया है क्या, एज ए एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्ट हैव यू ऑब्जर्व? जी बिल्कुल तारा जी, जब हम बच्चों को देखते हैं ना, छोटे बच्चों को भी अगर देखोगे तो एक अलग सा इरिटेशन उनमें दिखाई देता है अगर आप उनसे मोबाइल ले लो। बहुत ही छोटा बच्चा भी मैंने देखा है कि वो इतना इरिटेट हो जाता, पहले तो पेरेंट्स ने ही मोबाइल दे दिया अपना सॉर्ट आउट करने के लिए उसे, लेकिन जब वो उसका एडिक्ट हो गया, और बहुत छोटी एज में ये वर्ड हम यूज करते हैं लेकिन हाँ ये एडिक्शन ही है, कि अगर आप उस बच्चे से वो मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी आप ले लोगे, वो टैंट्रम क्रिएट करता है, वो इरिटेट हो जाता है उस, जैसे हम बाकी ड्रग्स के एडिक्शन की बात करते थे, तो जब वो टाइम होता है और वो नहीं मिलता, तो देर इज सम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स वी सी, उस इंसान में दिखाई देते हैं, वैसा ही सिम्टम छोटे बच्चे में जब उससे मोबाइल ले लिया जाता है वो आप क्लियरली विजिबल होता है, आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो कि वो उसकी बॉडी रिएक्ट करती है उस टाइम पे, कि मेरे पास मेरा जो जरूरत की चीज है वो मिस हो रही है मेरे पास से। डेफिनेटली ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट होता है, माइंड पर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब छोटे बच्चे मोबाइल से एडिक्ट हो जाते हैं तो बहुत छोटी एज से ही वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं सीख पाते। जो इमोशनल प्रोसेसिंग होती है कि खुशी है, गम है, आप हैप्पी हो, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे सैडनेस को एक्सप्रेस करना है, कैसे उसे मैनेज करना है, गुस्सा आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। पर जब हम मोबाइल के एडिक्शन में आ जाते हैं तो हमारी सब चीजों का सोल्यूशन, चाहे हम बोर हो रहे हैं, चाहे हम सैड हैं, चाहे हम हैप्पी हैं, वी स्टिक टू मोबाइल। तो डिफरेंट इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे अपनी लाइफ में उसकी प्रोसेसिंग होगी, कैसे हम उसके सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो बच्चा छोटी उम्र से ही नहीं सीखता। उसको होता है कि हर चीज के लिए मोबाइल मिल गया, बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बड़े खतरनाक रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब कि हम आज की डेट में हम मेंटल वेलनेस जब हम आ जाते हैं, इमोशनल वेलनेस आ जाते हैं, तो वो यही कारण है कि इमोशनल प्रोसेसिंग तो सीखी ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही बनता है, क्योंकि मोबाइल ने एक डोपामिन बहुत जल्दी उसको प्रोवाइड करा दिया, कैसी भी सिचुएशन में है वो उसको स्पाइक मिल रहा है, वो उसको स्पाइक मिल रहा है, तो उसके इमोशन बॉडी में कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सब इमीडिएटली वो उसको रिवर्स कर देता है। बहुत सुंदर से कार्टून्स आगे बच्चों के लिए, इतने कलरफुल कार्टून्स हैं आज की डेट में, जो हम भी जब छोटे थे तो बहुत सारे कार्टून्स थे, लिमिट में होते थे, देखते थे। बट अगर आप स्टडी करोगे, रिसर्च भी ये कहती है कि जो आज कार्टून्स या जो भी बच्चों के लिए कोई भी वीडियोस बन रही हैं, कलर, टोन, साउंड, पिचिंग, एवरीथिंग इज लाइक, वो बच्चों को एडिक्ट बना रही है। जो उनका आसपास का एनवायरनमेंट है वो उन्हें बोरिंग लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है, मेमोरी नो डाउट इम्पैक्ट करती है। आज की डेट में आप मोबाइल पे करो तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ऑटो करेक्शन है, स्पेलिंग याद नहीं करनी है, आप लिख नहीं सकते तो आप स्पीकर पे बोल के अपना मैसेज कर सकते हो कन्वे। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो स्मार्टफोन्स है वो लैंग्वेज कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके ब्रेन को क्या काम करना है, कुछ भी नहीं। तो ब्रेन क्या हो जाएगा जब आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वो डंप होता जा रहा है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों इंपैक्ट आ रहे हैं। और हम जब फिजियोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो पूरी बॉडी पे आपको माइंड खराब हुआ, तो जब बच्चा मोबाइल के साथ रहता है तो वो एक ही जगह स्टिल रहता है, फिजिकल मूवमेंट उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिजिकल मूवमेंट नहीं करेगा तो फिजिकल डेवलपमेंट इम्पैक्ट होता है। खाना खाता है तो साथ साथ मोबाइल चल रहा है, तो डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, दे डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ मच दे आर ईटिंग, क्या खाया क्या नहीं खाया। पेरेंट्स को भी है कि छो, छोटे से बच्चे को खाना खिलाने के लिए मदर्स क्या करती हैं, सामने फेवरेट कार्टून चला दिया और मुंह में डाल दिया, क्या डाला क्या खाया, ना टेस्ट पता है ना क्वांटिटी पता है। मदर को सेटिस्फेक्शन होगी मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, बट वो खाना उसके लिए जीरो है, कहीं से वो उसको हेल्थ प्रोवाइड नहीं करता। तो और उसके अलावा
जो मोबाइल की रेडिएशंस हैं, एवरीबडी नोज, रिसर्च ने भी प्रूव किया है, वो आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, नर्व्स को इम्पैक्ट करती हैं, ऑटोमेटिकली नर्व्स वीक होंगी। इसके लिए कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये जब हमें ये मोबाइल्स दिए गए हैं तो उसके साथ ये इंस्ट्रक्शन टैग हैं, बट वी आर जस्ट अवॉइडिंग इट। तो ये हमारा मेंटली या फिजिकली बच्चों पे इम्पैक्ट तो आ ही रहा है। ये अलग बात है कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है और आज के लाइफ का पार्ट है। पर यहीं से हमें सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो अगेन, पहले प्रॉब्लम्स को इतनी बारीकी से अगर आप सोचोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स तक नहीं छोड़ते, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ना ही पड़ेगा। जो मेरे पर्सनल का भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं 2004 से काम चालू किया। मैं प्रोफेशनली आई वाज वर्किंग विद कंपनीज। तो बीच में ऐसा हो गया था कि जैसे आपने बोल रहे थे ना, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो आई हैड एन आइडेंटिटी प्रूफ फॉर माई सेल्फ। So everyone sees, oh, Tara is working. She's doing good. She's having a very good character. She's working in that company, MNC company. तो नाम नहीं लेना चाहती. So MNC company, she is working in night shift. So she has her own, like everyone was praising. So I was like, I don't want to put a puncture to my identity, which they have created around myself. It's become a balloon. But I had my own problems when me from a two-tier town and then working in a big city and MNC, the culture is different, the exposure is different. So सबको adjust करना, I could hear what the comments they used to give on me. So I have to completely ignore. But it is all my mind play. But somewhere I have to express. I have to. It was like very new to me, and I had not that great friend circle in the office at that time. So what was I doing? Shifted to games. I had a basic number phone, and we had only two games in it. One is Snake, and one is Carom. And believe it or not, I was playing all that only to distract my mind. And I had very proud statement saying, I am managing my emotions. So what am I doing? I'm suppressing it. I'm not letting my identity get punctured. I am suppressing it. And as and when I moved out, like working to the marriage and then in-laws phase, there also as women we all face. But the manage of my emotions there as well was the phone itself. So the game addiction was like it's gone to desktop now. Instead of phone, it has gone to desktop. I was playing. I don't remember the game also somewhere. So, and when the smartphones came into my hand, Temple Run. So I was like, then later one point of time, I started thinking, what am I doing? So this is all waste of time. I'm not doing any productive work. So I stopped that. And what else did I get addicted to? After the game addiction gone, I got addicted to serials. There was, like, I think I used to watch 3 Hindi serials and 4 or 5 regional serials. There was one point of time, Sarah, what are you doing? One question to myself in front of the mirror. So there also I stopped. So what was the next thing? That time, this Facebook wasn't trend. And I had delivered 2 babies, and after the second one, I did not go to work officially. So there is no work environment. It is like a routine at home. I need one more environment for myself, so get onto social media. So I'm expressing my addictions because I could work on myself. So the social addiction, social sites, websites, Facebook, yeah, Insta, these kind of YouTube, these kind of sites, I got rid of them only by uninstalling those apps on my phone. So I wasn't any certified coach at that time, but still I could think of it. So if there is any one individual who really wants to stop or come out of this addiction, is there any possibility? गरिमा जी, आपका थॉट अराउंड इट। एडिक्शन से बाहर आने के लिए सबसे पहले उसकी अवेयरनेस, जैसे आपने बताया कि आपको अवेयरनेस आ गई, जैसे अवेयरनेस आई तो आप उससे बाहर आ गए। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए अवेयरनेस
अगर आ जाती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, गलत वे में जा रहा हूँ, इससे मेरी पर्सनालिटी पे, मेरे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मेरी जो लाइफ है किस तरह से इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर ये अवेयरनेस सेल्फ आ जाती है तो बहुत बढ़िया है। तो बड़ों में तो ये संभावना है कि सेल्फ आ जाती है, पर छोटे बच्चों में नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका इतना ब्रेन डेवलप नहीं हुआ रहता है, इतनी दुनियादारी उन्होंने नहीं जानी होती है, इतना नहीं सीखा होता है। तो इस कंडीशंस में पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि कैसे वो उनको अवेयर करें। और यहाँ पे पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है, जब टीनेजर्स में बच्चे होते हैं, कि वो उनको जिस तरफ मोड़ेंगे। तो पेरेंट्स अगर नहीं, अपनी परेशानी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि समस्या बढ़ने वाली है तो पेरेंट्स की बढ़ने वाली है। अगर कोई टीनेजर है और उसके उसके साथ ये एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मोबाइल से ज्यादा एडिक्ट होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और अभी हमने देखा, आप लोगों ने बताया, दीदी जी ने बताया कि वो एक इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सीख पा रहा है, अपने इमोशंस को किस तरह से, कब कहाँ किस रोल में करना है। उन्होंने बताया कि डोपामिन का जो है फास्ट मूवमेंट हमारे मोबाइल स्क्रीन पे हो जाता है, और हम वापस से रिकवर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं सडनली। पहले कोई एक गुस्सा आता था ना, या किसी मम्मी मम्मी ने हमको कुछ कह दिया, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, या टीचर ने कुछ कह दिया, तो वो थॉट प्रोसेस काफी लॉन्ग हमारे उसमें चलती थी। मतलब 2-3 घंटे वो प्रोसेस चलती थी, उसको हम समझते थे और खुद ही उससे रिकवर होते थे। तो एक वो पूरी प्रोसेस, उससे ब्रेन की एक लर्निंग होती थी। जब वो नेक्स्ट टाइम होती है तो हमको पता है कि नहीं ऐसा होता है, चलो ये तो मैम की आदत है, या मैम ने हमारी भलाई के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम जब होता था बुरा लगता था, हम काफी देर तक उससे जूझते रहते थे कि आज मम्मी ने ऐसे बोल दिया तो क्यों बोला, या क्या हुआ, गुमसुम रहते थे, अंदर ही अंदर विचार चलते थे, थॉट आते थे कि ऐसा है, इसका रीजन ये हो सकता है, ये है, और फिर हम उससे खुद से ही निकलते थे। तो हमें एक अच्छा टाइम पीरियड मिलता था। लेकिन आज हम उस चीज को प्रोसेस ही नहीं करते। बोला, हमें बुरा लग गया, और हमने उठाया मोबाइल और हमने उसमें स्क्रॉल किया, और डोपामाइन का हिट मिल गया, और अब वो विचार चला गया। अब हमने उस पर्टिकुलर प्रोसेस से जूझना ही नहीं सीखा कि कैसे जूझेंगे। अब जिस दिन मोबाइल नहीं है, अब अचानक से आ गया, हम बड़े भी हो गए, क्योंकि हमारी तो प्रोसेस में वो आया ही नहीं। लर्निंग प्रोसेस में ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस में आती है, स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है। अब जब वो आया ही नहीं, और जब अचानक से ये स्टेप कभी आई, किसी ने कह दिया, तो आजकल वो बच्चे उस इमोशन को हैंडल ही नहीं कर पाते, और वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी कभी ऐसी स्टेप्स उठ जाती हैं कि एक बड़ा जो है नुकसान हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। बच्चा ना समझी में, और पेरेंट्स सोच ही नहीं सकते कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने ये सीखा ही नहीं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो माइंड सीखता है अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे, और ये उसकी स्किप हो गई है मोबाइल की वजह से, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ में तो रह ही नहीं रहा है, मैक्सिमम वर्चुअल लाइफ में है, और उसी को उसने सच मान लिया है, उसी में वो चीजें देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, उसी से उसका माइंड डेवलप हुआ है। तो जब वो प्रेजेंट लाइफ में आता है, जब वहां ऐसी सिचुएशन आती है जब वो उसको समझ नहीं पाता है, तो उसे कॉप अप भी नहीं कर पाता है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि उसे वो कितने समय स्क्रीन टाइम पे, अगर ज्यादा बच्चा देख रहा है, वो जॉब पर भी है, वो अगर समय नहीं भी दे पा रहे, तो भी उनको समय निकालकर उसे किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एक फिजिकल एक्टिविटी ही है जो उसको जो ये आदत बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है, एडिक्शन का रूप ले रही है, उससे उसको दूर कर सकता है। तो हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, फैमिली टाइम बढ़ाएं, और हम कर सकते हैं कि कुछ सभी के लिए रूल्स बनाएं, फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए, कि भाई इस समय हम इस जगह पे हमारा फोन नहीं होना चाहिए, जैसे बेडरूम में नहीं होना चाहिए, डाइनिंग रूम में नहीं होना चाहिए। तो वो सभी के लिए कॉमन रूल होना चाहिए, उसका फॉलो माता पिता भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक टाइमिंग सेट करें कि हम अपना इतने समय के लिए, जैसे हमारी तारा जी वेनसडे को म्यूट डे रहता है उनका, वो बोलती नहीं है। अब हम सबको ये बात ऐसा लगता है कि यार कैसे होता होगा, कैसे संभव है, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे कोई बिना बोले रह सकता है। लेकिन हम 2 साल से देख रहे हैं तारा जी के साथ कि वो इस चीज को कंटिन्यूटी में बनाए रखे। तो कोई व्यक्ति अगर ठान लेता है कि नहीं, मुझे अपना इतना ही स्क्रीन टाइम रखना है, या मैं इस समय से इस समय तक कुछ भी हो जाए मैं अपना मोबाइल दूर रखूंगा, तो वो कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि हम इतने समय के लिए ही लेंगे। तो एक ऐसा फैमिली रूल बन जाए। कुछ ना कुछ फैमिली की गैदरिंग होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे हम मोबाइल के थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, कि हमको कुछ करने को मिले। आज है ना, हम ड्राइंग देख रहे हैं, पर बच्चा खुद से बैठ के ड्राइंग नहीं करना चाहता, वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी देख रहा है, उससे कंपैरिजन भी आ जाता है, उससे उसको ये भी लगता है कि सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है कि मैं इतना अच्छा नहीं कर, क्योंकि वो अपना कंपैरिजन हाई से कर रहा है। हमने हमने हमारी ग्रोइंग क्या हुई कि हमने एक अच्छा बनाया, उससे अच्छा बनाया, तो हमारे आसपास वाले थे जो कि उनका भी ऐसे ही रहता था, तो हमें बहुत अच्छा नहीं, आज उसको पता है कि इतना अच्छी क्वालिटी है, इतना अच्छा पिक्चर बन सकता है, तो वो कोशिश ही नहीं करता कि मुझसे तो बनना ही नहीं है। तो सेल्फ स्टीम डाउन हो रही है उसकी कहीं ना कहीं। तो वो तभी आएगी जब वो खुद से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करेगा, जिसमें भी उसकी स्किल है, उसको मौके मिलना चाहिए। तो ये फैमिली पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको कैसे मौके मिले, उसे कहीं ना कहीं इस तरह की जगह पे इंगेज करें। अगर बहुत ज्यादा एडिक्शन बढ़ गया है, तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी है, जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को बताया जाता है कि उसके जो बिहेवियर्स हैं, इससे क्या नुकसान उसको हो सकते हैं,
अवेयरनेस लाने के लिए, और इससे वो कैसे कॉप अप कर सकता है। मेडिटेशन है, माइंडफुल टेक्निक्स हैं, तो उनका यूज कर सकते हैं। और अगर इसके भी ऊपर चला गया है, फिर तो खतरे की घंटी बजी गई है, तो फिर तो आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को से बात कर ही लेनी चाहिए, और बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स अगर अपनी ड्यूटी को नहीं प्रॉपर निभाते हैं, और समय रहते अगर उनको ये अवेयरनेस नहीं आती है, तो ना सिर्फ अकेले वो बच्चा भी परेशान होगा, और वो भी परेशान होंगे, और अगर कोई बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उन्हें भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आपने सही एक्सपीरियंस शेयर किया गरिमा जी। तो जैसे हमने चालू किया था पेरेंट्स की माइंडफुलनेस के हिसाब से, तो जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उन लोगों का ध्यान ही नहीं था। तो जैसे ही वही उन लोगों का पेरेंटिंग में कमी हो गई, मतलब हर बार हमें ज्यादा वॉइस पेरेंट्स का सुनने को मिलता है, तो इसीलिए बच्चों को ये बात पता नहीं है कि वो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो पहला चेंज मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स में आ जाए, ताकि बिल्कुल बिन बोले बच्चे भी उसको फॉलो करने लगे। तो घर में मैं अभी ज्यादातर बुक पकड़ के बैठती हूँ पढ़ने के लिए। बच्चे भी कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए वो देखते हैं, मम्मी फोन नहीं, फोन का टाइम नहीं है। तो कुछ ना कुछ वो सोचने के लिए दिमाग को चालू करना पड़ेगा। तो ये मोबाइल का क्या हो रहा है, पूरा दिमाग पे असर पड़ रहा है। इट इज नॉट लेटिंग दैट फ्रेंडशिप विथ योर माइंड एग्जिस्ट व्हेन यू आर हैविंग द फूड। हमारे सनातन में बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अभी हमने इतना डिस्कस किया कि जब खाते वक्त पेरेंट्स भी करते हैं। मैं कभी जैसे मेरे आजू बाजू में देखती हूँ, तो पहले आप खाना खाओ, बाद में फोन खाओ। तो ऐसे देखते हैं कि वो चुप हो जाते हैं, उसको कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, क्योंकि उसको पता है वो जब मैंने बोली वो ठीक है। तो ये एडिक्शन का फोन फूड की टाइम पे बच्चों का एडिक्शन था, वो अभी कम हुआ है, क्योंकि वो मुझे देखते हैं। 10 मिनट पहले फोकस में खाना खाओ, बाद में कुछ भी करो। तो ये वाला चीज ना, हाँ 10 मिनट, what am I letting my kids to do? I'm asking them to give that time to their brain to sustain with that addiction. So I'm asking them to procrastinate that addiction instinct. तो 10 मिनट के लिए तुम पहले खाना खाओ, क्या खा रहे हो वो बताओ, बाद में फोन पकड़ो, ताकि वो डोपामिन का अच्छा असर पड़े। अभी पहले खाना खा रहे हो, वो नहीं सो रहा है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक जैसे आप बता रहे थे, नर्वस सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है। दे स्टार्ट बिकमिंग क्रैंकी। दीप्ति जी, आपकी तरफ से कोई टिप्स अभी? तो पेरेंट्स का मतलब वो कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा। तो कई टेक्निक्स गरिमा जी ने भी बता दिया कि सीबीटी, देन ऑल अदर टेक्निक्स दैट वी कैन यूज इट एज अ फैमिली टाइम। हमें खुद पूरा फैमिली कोशिश करना पड़ेगा। अभी मान लो घर में ऐसा माहौल है कि कुछ ना कुछ स्क्रीन चलता ही रहता है। वो बड़ा स्क्रीन हो सकता है, छोटा स्क्रीन हो सकता है, कुछ म्यूजिक सिस्टम हो सकता है। ऐसा माहौल में हर दिन सुबह से लेकर रात तक चलता है, तो कैसा असर बच्चों पे देखने के लिए होता है? और एज अ फुल फैमिली, व्हाट शुड बी देयर एफर्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, जैसे हम अभी डिस्कशन में भी बात हुई कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही आ जाती है, कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं हम अपने बच्चों को, तो पहला तो चेंज पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही रोल मॉडल है। तो चेंज तो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे गरिमा जी ने भी एक अच्छा ऑप्शन दिया कि हम नो गैजेट जोन बनाएं। एटलीस्ट घर में कुछ ऐसा प्लेस होगा, कुछ ऐसा टाइम होगा जब हम गैजेट नहीं यूज करेंगे। तो ये पेरेंट्स अगर फिक्स कर दे, चाहे वहां टैग्स लगा दो आप, नो गैजेट जोन। जैसे कि डाइनिंग टेबल है, हमें पता है कि वहां खाने के साथ अगर हम मोबाइल देखते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एटलीस्ट एक स्टिकर लगा दे कुछ दिन तक, कुछ कलर कोडिंग लगा दे, सो दैट कि हमें पता हो कि यहाँ हमें गैजेट्स नहीं यूज करने हैं, यहाँ हमारा मोबाइल नहीं आएगा। पेरेंट्स भी साइड रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे वही सीखेंगे। और जितनी जल्दी छोटी एज से ये चीज फॉलो होगी, तो ऑटोमेटिकली उनके वो उसको एब्जॉर्ब वैसे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करने लगते हैं। तो उनको वही हैबिट में आ जाएगा कि हमें डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए मोबाइल नहीं यूज करना है। या बेड टाइम पे जब हम सोने जा रहे हैं, तो आप टाइम फिक्स कर दो। इस टाइम जोन में मान लो आपका 10 o'clock स्लीपिंग टाइम है, तो फिक्स कर दो 9 o'clock आपकी गैजेट्स बेड के साइड पे नहीं होने चाहिए। 9 o'clock शट डाउन योर गैजेट्स। मोबाइल्स को अपने से दूर रख दो। ऑटोमेटिकली रेडिएशन से बचोगे। आईज पे भी जो इम्पैक्ट आता है सोने से पहले, वो भी नहीं होगा।
रीडिंग इज बेटर। अगर आप कुछ करना भी है तो वो रीडिंग टाइम कर लो, अपना टाइम टेबल ही ऐसे एडजस्ट कर लो कि उस टाइम पे वो नहीं यूज होना। तो जब हम कुछ ऐसा रूल्स बनाएंगे तो ही चेंज हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे डिफाइन करती हूँ कि जैसे हम कोई भी गैजेट्स आते हैं, कोई भी हम छोटे से छोटा, इवन जैसे कि हम किचन में कुकर भी लेकर आते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज इट। सो मोबाइल भी ऐसा ही है, मोबाइल के साथ हमने बच्चों को मोबाइल तो दिया, बट वी हैव नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद दैट कि हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज। तो ये चीजें जब हम बच्चे को मोबाइल पहली बार देते हैं, बहुत छोटे उम्र में देते हैं, और ऐसे कि जितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है या जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, ये चीजें हमारे लिए मस्ट हो गई हैं। वी कैन नॉट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो बेटर है कि हम इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाएं। सबके लिए अपना इंडिविजुअल हो सकता है, कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं आएगा कि आपको यही करना है। आपके अपने सिनेरियोज हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो। अब वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए अलग हो सकता है। हाउस में जो ज्वाइंट फैमिली कल्चर है उसमें अलग हो सकता है। इसीलिए आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि ये फॉलो करना है। एवरी फैमिली हैज ओन कल्चर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो आप कुछ रूल्स डिफाइन करके दो, कुछ डिसिप्लिन में। आप स्टार्टिंग से ही उसको फॉलो करने के लिए कहोगे तो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं ना, गाइडिंग मैनुअल उसके साथ जरूर होना चाहिए जब आपने पहले इंस्ट्रूमेंट दिया है। नहीं तो वो, जैसे कहते हैं कि फायर के पास भी होता है, तो बच्चा अगर फायर को हाथ लगाने जाता है तो हमें पता है ना कि हम रोकते हैं बच्चे को, इसको नहीं करना कि ये बर्न हो जाएगा। और जैसे हम कहते हैं फायर भी, फायर कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिवली प्रॉपर रेशियो में, हम कहते हैं कि सिम पे करना है या हाई फ्लेम पे करना है, हम प्रॉपर कुकिंग के लिए यूज करते हैं तो वो एक डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर देती है। और अगर हम उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर तो वो पूरा घर भी जला सकती है। तो सेम एज द मोबाइल, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आप इस मोबाइल को एक बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी एडवांसमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए हम उसे यूज करें या हम अपने डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करें। तो हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमें नॉलेज इतनी वास्ट मिल रही है इस मोबाइल के थ्रू, तो हम उस वे में उसको यूज करें जितनी हमें उसको सही तरीके से यूज करना है। इंस्पाइट ऑफ की रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हटा मैनेज करना नहीं सीख रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ मैं लाइव एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, और पेरेंट्स कोशिश कर भी रहे हैं। मेरी एक कजन है, उसकी बेटी 2 साल की है। तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो स्टार्टिंग में जैसे ही, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट गैजेट ही बच्चा मोबाइल देखता है, तो मोबाइल पे म्यूजिक बजा एंड शी स्टार्टेड डांसिंग, और बहुत अच्छे मूव्स करती है वो। तो उसको ये हो गया कि जब भी होता था कि म्यूजिक लगाया और वो डांस करना शुरू, और उसका बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रही है, इट्स गुड। पर बच्चे ने भी देख लिया कि हाँ, कहाँ सॉन्ग चलता है। बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं, तो वो बार बार मोबाइल को ही उठा के सॉन्ग गाना, और उसको जो बीट्स पसंद है उसको पता भी चल गया कि कहाँ मम्मा क्लिक करती है। तो अब मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं, मोबाइल इज नॉट गुड। तो व्हाट शी डिड, उन्होंने मोबाइल के बजाय अपने घर में एक छोटा वाईफाई स्पीकर दिया, विद माइक है वो। और माइक में वो बोल भी लेती है, उसको वो भी इंजॉयमेंट आता है। और स्पीकर पे आप चाहे कनेक्टेड है वाईफाई से, सिर्फ गाना बजता है, साउंड आती है, शी एंजॉय डांसिंग। तो उसको गैजेट से ऑटोमेटिकली दूर कर दिया। आईज को सेव कर रहे हैं, माइंड को सेव कर रहे हैं, इतनी छोटी एज से वो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हुई। अब वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को बाहर ले जाओ, आप पार्क ले जाओ, प्ले जोन कहीं पे भी करो। व्हाट शी डिड कि उसने अपने घर में ही छोटा स्लाइड परचेज कर लिया। आजकल अमेजोन पे सब मिलता है, ऑर्डर किया। नाउ शी हैज अ स्लाइड एट होम, छोटा सा कॉर्नर में वो स्लाइड रख दिया। और वो बच्ची सारा दिन, जब आती है घर, शाम हो जाती है, मम्मी घर आती है, वर्किंग पेरेंट है, तो वो क्या करती है, आते ही उसको जब तक अपना काम है वो ऑक्यूपाइड कर दिया, वो सारा दिन स्लाइड पे ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आ रही है। शी इज एंजॉइंग, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, एंजॉयमेंट हो रहा है, जो उसको बाहर नहीं मिल सकता। तो वही मेरा कहना है कि हमारा अपना जो एनवायरनमेंट है, हमें पता है हम कितने ऑक्यूपाइड है, हमारे पास क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग उसमें इसको फिट इन करें। पर्पस एक ही है कि मोबाइल का बच्चे को हम अगर बचपन से दे देंगे तो वो एडिक्शन में होगा ही होगा। तो बच्चे को नहीं पता ना क्या यूज करना है, तो उसके सारे इमोशंस वहीं से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बाकी सारी चीजों से डिटैच हो रहा है। और जैसे आप अभी फूड की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली फूड जो है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, हम कहते हैं। और उसके बाद हमारा माइंड जो है वो हेल्प करते हैं हमारी हैबिट्स को क्रिएट करने में। और जब हैबिट्स जो होती हैं वही एडिक्शन में कन्वर्ट होती हैं। सबसे पहले गरिमा जी ने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि हैबिट्स जो है हमारा एडिक्शन बन जाती है।
क्योंकि हमें आदत बन गई कि हमें हर 5 मिनट बाद मोबाइल देखना है। तो हर 5 मिनट बाद क्या बन गया, वो देखना, वो एडिक्शन बन जाता है। तो फूड से शुरू होता है। तो फूड को हमें क्या करना है, अगर अगर हम अपने शास्त्र में देखते हैं तो हमें तामसिक, सात्विक और राजसिक जो है फूड के बारे में बात की गई है। तो ऑब्वियसली सात्विक फूड जब हम खाते हैं तो हमारा माइंड काम रहता है, फोकस रहता है, अटेंटिव रहता है, डिसिप्लिन रहता है। और जहां हम तामसिक फूड पे आ जाते हैं, और तामसिक में हमारा स्टेल फूड भी आ जाता है। हम स्टेल फूड भी अगर खाते हैं या हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, वो हमें एडिक्शन की तरफ ही करती है। आप चिप्स का पैकेट खोलते हो तो क्या होता है, आप एक बाइट से नहीं सबर कर सकते जब तक वो पूरा पैकेट नहीं खत्म होता। तो एडिक्शन ही है ना, वो क्रेविंग होती है हमें। तो Correct. एडिक्शन इज क्रेविंग। तो मोबाइल की भी हमें क्रेविंग होती है कि हमें मिल जाए, हमारे हाथ में होना चाहिए। समटाइम्स पीपल हैव कि वो पर्स में नहीं रख सकते, उसे हाथ में होगा तभी उनको सेटिस्फेक्शन रहता है। तो Correct. उससे बचना है तो ऑब्वियसली हमें अपने फूड को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हम उसको भी नहीं अवॉइड कर सकते कि हम गुड फूड लें। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेना पड़ेगा, अगर हमें अपनी जनरेशन को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को। वी कैन नॉट रिमूव द गैजेट्स, बट वी कैन रिप्लेस इट। सो रिप्लेस वेर एवर पॉसिबल यू कैन। आप उनको कुछ और ऑप्शंस दो, जितना भी मल्टीपल ऑप्शंस, ड्राइंग, क्राफ्ट, प्ले, जो भी पॉसिबिलिटी है वो देना है। ऑटोमेटिकली जो होगा, बेटरमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। ये तो सारा छोटे बच्चे का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बता दिया। अभी बड़े बच्चों का तो अवेयरनेस ही वो खुद ठान लेना चाहिए कि वो हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं बनना चाहिए। तो पहले मैं एक लीडर बन जाती हूँ ताकि वो मुझे फॉलो करे। तो ये वाला अडल्ट को, पेरेंट्स को देखना ही पड़ेगा। तो जैसे एक और मैं बोलती हूँ, नर्वस सिस्टम का पूरा नर्व्स हमारे हाथ में रहता है। जब भी हम कोई इवेंट्स में अटेंड करते हैं, क्लैप करना है, तो एक्सटेंडेड आर्म को बगल में रख के पूरा हाथ से क्लैप करने से पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे दिमाग को भी थोड़ा कामनेस मिलता है। प्रोकास्टिनेशन एडिक्शन में आना चाहिए, काम करने में नहीं है। ये चीज सब नोट करना पड़ेगा। So wonderful discussion, but I know there are so many experiences. If we go on talk on this, it will be like a very long episode. Half-hearted, I'm ending this episode to this today. So thank you so much, Deepti ji. Thank you so much, Garima ji, for joining me in this discussion. And I know there are so many reels around it, so many psychologists, so many researchers talking about it, how to overcome, what all can be done when the mobile is in their hand. They are supposed to look for such things also to overcome and manage their lifestyle and their family. So it's in everyone's hand, so it's left to them. We have also tried one bit of our knowledge towards us. So hope at least if one person changes with our discussion, it's our purpose of this episode will be served. So thank you so much again. See you in another episode. If you want to contact any three of us, you have the numbers below. If you like the episode, please like, share, and subscribe. See you in another episode. Bye bye.